Hello and namaste, friends, and you beautiful ladies. And I hope your lovely journey is going on as expected, beautiful, and incredible. And you're really enjoying your pregnancy and literally glowing in its glory. And I'm your friend Sonia Pava again here from Nine and Beyond, your holistic pregnancy app. And like आज के दिन में I think you guys are getting ready to light up your houses for Diwali. We are here again to enlighten you, your mind and your heart with experts on a panel who will share their wisdom and knowledge so that we can empower you and enlighten your pregnancy journey like you're enlightening your house for Diwali. And today amongst us we have a very special person, Dr. Madhura Kulkarni ji. She is an Ayurvedic gynecologist and she is associated with an NGO named Arogya Bharati, which this takes care of social health and personal health of people. And आप लोगों की जानकारी के लिए, she heads this organization in their component of Garv Sanskar at a national level. So you know what an expert person we have today. And आप please आज इन लोगों को बताइए that how is Ayurveda, and I think first we need to let them know that would you like to say something on your Garb Sanskar thing? इसके बारे में कुछ बोलेंगे? ऐसे ही चालू कर देते हैं। Okay. आपको क्या पूछना था? I basically felt कि जो मुझे personally लगा that allopath gynecologists everybody's heard of. Very rarely people hear about Ayurveda gynecologists. Yes. So, आपकी नज़र में is there a difference between two things? And then if there is, then what is the difference? And how does it help in the Garb Sanskar journey? Because you are actually empowering that journey of people. And आपके पास तो आप तो actually इस चीज़ को promote कर रहे हैं. Yes. So, आप please बताइए इन लोगों को कि how is this beneficial and what is the difference? Yes. नमस्कार सोनिया जी, एक बड़ी सुंदर बात अभी हमने कही कि इट्स दिवाली अराउंड, सो एवरीवन इज रेडी टू लाइक एंजॉय एंड फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. नाउ दिस इज द एग्जाम्पल हाउ द gynecology differs from modern technology and the ancient wisdom. Right. We always talk about Diwali, Deep, and everything. But do you know, Kartik Mahina is basically an ancient month when we celebrate our own internal, what I can say, soul energy. Okay. इस महीने में जब भी हम दीपदान करते हैं तो बहुत पुण्य मिलता है. दीपदान मीन्स कैसे है कि जो भी नॉलेज अपने पास है वो दूसरे को देना. That's a beautiful sentence, and I think ये मैं first time concept सुन रही हूँ दिवाली celebrate करने का. आप knowledge का दीप जला रहे हैं Yes. और उसको share करके लोगों को enlighten कर रहे हैं. That's beautiful. यस, द सेम मैनर जब भी हम गायनेकोलॉजी का बात करते हैं, अभी इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम ऑपरेट भी कर सकते हैं फीटस पर. Even in Ayurveda? No, I'm talking about the modern technology. Absolutely, बिल्कुल. So these all are the technological developmental modules. Okay. Okay, so वो गायनेकोलॉजी में अपने पास है, तो प्रेगनेंसी में फिटस का कुछ भी डिफेक्ट है तो वो भी मॉनिटर होता है. सोनोग्राफिकली हम मॉनिटरिंग करते हैं. एवरीथिंग टेक्नोलॉजिकली सारी चीज़ है. लेकिन जब हम आयुर्वेद का विचार करते हैं तो कैसे है कि इंटरनल ये जो डेवलपमेंट ऑफ द फीटस है उसका माइंड, साइकोलॉजी और स्पिरिट लेवल पे कैसे डेवलपमेंट होता है. Right. तो वो जो विचार है, वो जो डिफरेंस है, मीन्स एंशियंट विजडम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इन दोनों को अगर जुड़ा दिया जाए Absolutely. तो ये दिवाली की दीप कुछ अलग तरह से हमें समझेंगे. Absolutely. एकदम सिंपल सा और एक एग्जाम्पल है. जैसे गर्भ संस्कार क्या है? गर्भ मीन्स फिटस, जो कंसील है, अंदर बढ़ रहा है ना. तो एक स्पर्म आ गया और एक ओवम, दोनों को मिलकर गर्भ बन गया. लेकिन जब हम एंशियंट विजडम को यहाँ अप्लाई करते हैं तो कैसे है कि यहाँ चैतन्य, आत्मा या सोल भी आता है.
जो कॉन्सेप्ट अभी टेक्नोलॉजिकली हम मॉनिटर नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, लेकिन आयुर्वेद जो है वो प्रमोट करता है कि यस, ये बेसलाइन होने के बाद ही कुछ न कुछ उसमें जीव आ सकता है, तभी प्रेगनेंसी आ सकती है। एक स्पर्म को और इसको मिला दो तो प्रेगनेंसी नहीं आएगी। उसमें जब तक सोल ट्रांसफॉर्म नहीं होता, जब तक उसमें एनर्जी जनरेट नहीं होती, तब तक वो फीटस नहीं कहलाएगा। दो सेल जुड़ के फीटस नहीं हो सकता। राइट। इंटरनल ब्यूटीफुल एंशिएंट विजडम है जो कई अपने वेदों में, उपनिषदों में बताया गया है इसके बारे में। डायरेक्ट वर्ड गर्भ संस्कार नहीं है, लेकिन उन्होंने ये डेवलपमेंट ऑफ फीटस बोला है, डेवलपमेंट ऑफ माइंड बोला है, तो तरह तरह के एक्सप्लेनेशन उसमें आएंगे। बेसिकली गर्भ मीन्स गर्भ जो 3 कंपोनेंट से बना है, माइंड, बॉडी और चैतन्य या स्पिरिट, एनर्जीज। ओके, तो सुप्रीम एनर्जी वी कैन से। तो ये 3 कंपोनेंट से अपना गर्भ बनाया। और संस्कार मीन्स क्या? तो संस्कारो ही गुणांतरा धानम, नए नए गुण उसमें अगर हम दे सकते, क्वालिटीज उसके बढ़ा सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, उसको जी, एनरिच कर सकते हैं कुछ अलग इससे। तो जो एक्सपीरियंस है वो संस्कार। राइट। तो ये दोनों को जोड़ के गर्भ संस्कार बनता है। सो मजरा जी, एक बात बताइए, जैसे आप लोग गर्भ संस्कार को फॉलो कर रहे हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं, और आपके पास इस बात को लेके टेस्टिमोनियल्स हैं, राइट? ऑब्वियसली ये सब चीज़ें हमारी एंशिएंट विजडम, हमारी उपनिषद से आ रही हैं, एंड वी ऑल नो बाय नाउ कि उपनिषद में एक उपनिषद गर्भ उपनिषद भी है, राइट? करेक्ट। सो ये है और इसकी नॉलेज आप लोगों के पास है, तो आप प्लीज़ इसके बारे में बताओ ताकि हमारे ऑडियंस को मालूम पड़े कि ये हमारी एंशिएंट विजडम आज के टाइम में कितनी एप्लीकेबल है, कितनी रेलेवेंट है, और इसको कैसे अप्लाई करें। सुनिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एज अ प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट कई बार मुझे ऐसे लगता है कि क्या है कि उन्होंने किस तरह विजुलाइज किया होगा, किस तरह इसको मॉनिटर किया होगा, और आज की तारीख में वो कैसे एप्लीकेबल है। अभी देखो, अभी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा जन जागृति अभियान चालू किया है। मीन्स एक ऐसा मूवमेंट कि जिसमें अपनी पर्सनल हेल्थ को ठीक से रखा जाए। उसमें फर्स्ट क्या है? गर्भिणी परिचर्या, मीन्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फॉर प्रेग्नेंट लेडीज। कितना अच्छा किया है। तो मीन्स उनको समझ में अब तक इतना आया है कि प्रेग्नेंट लेडीज को कुछ अलग तरह से ऐसे करना चाहिए जिससे आने वाला बच्चा भी अच्छा हो और वो जो मदर है वो भी हेल्दी एंड हैप्पी हो जाए। अभी देखो, गर्भोपनिषद की आप बात करें तो सोनिया जी, दैट इज अ सीक्रेट एंड सेक्रेट नॉलेज फ्रॉम द वैदिक विजडम। देखिए, ऋग्वेद ये पोएट्रिक एक्सप्रेशन है जो अपने सेंस में लिखा था। लिखा मीन्स एक्चुअली वो एक्सप्रेस हुआ है। उसके जो पार्ट है उसमें उपनिषद आता है। उपनिषद मीन्स क्या? ऊपर मीन्स बाजू में, नीचे मीन्स टू सिट। जैसे भी हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल बाजू बाजू में बात करके कुछ क्वेश्चनिंग होता था, और उस क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते थे। दैट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन। उसमें ना गर्भोपनिषद जो है वो एक्चुअली माइनर उपनिषद में आता है। और उसमें 5 ऐसे टेक्स्ट है, 5 चैप्टर्स है। देखिए, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो पूरा डेवलपमेंट बताती है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है बहुत खुश हो जाती है। देखो कैसे इतना सा सेल है, उसके डिवीजन भी देखने को मिल जाते हैं, उसका डेवलपमेंट है, फिर हार्ट का वो ऐसे मूवमेंट्स देखने को मिल जाता है। ये सारी डेवलपमेंट हम मॉनिटर करते हैं सोनोग्राफी से। ठीक है, हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तभी देखो, पिप्पलाद नाम के ऋषि थे। वो पिप्पलाद ऋषि ने ये लिखा कि फर्स्ट 3 मंथ्स में किस तरह से फीटल डेवलपमेंट होती है, फिर कैसे उसमें माइंड अटैच हो जाता है, फिर कैसे उसमें चैतन्य आ जाता है। इसके लिए 6ठे महीने में आपको पेट में हलन चलन दिखती है। नहीं तो बहुत लोग बोलते रहे मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं, कि मुझे कुछ हलन चलन नहीं दिख रही। तो 6ठे महीने खत्म होते होते 6 मंथ्स की लास्ट एंडिंग में
पेट में हलन चलन दिखने लगती है। राइट। तो ये सारा जो डेवलपमेंट है, कई सारे डेवलपमेंट्स सोनोग्राफी में भी छूट जाते हैं। लेकिन ये जो डॉक्ट्राइन है गर्भोपनिषद, उसमें वो ब्यूटीफुल एक्सप्लेन्ड है। तो आप बोलोगे अब इस एक्सप्लेनेशन का क्या फ़ायदा है मुझे? अभी देखो प्रैक्टिकली क्यों गवर्नमेंट ने अनाउंस किया प्रेग्नेंट लेडीज़ को डिफरेंट ये, क्योंकि अभी ऐसे रिसर्च से सिद्ध हुआ है कि जो भी डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, जो अभी हम बहुत देखते हैं 30 साल में 40 साल में डॉक्टर अपने को डायबिटीज़ हो रहा है, हार्ट डिसीज़ हो रही है, ये सारी बाद में होने वाली डिसीजेस पेट में ही हम कवर कर सकते हैं। फीटस को इस तरह का हम सपोर्ट दे सकते हैं कि उसमें आगे चलकर ये बड़ी बीमारियां न हो। कितनी बड़ी बात है। Absolutely. As a mother, if the mother can teach the fetus about the food habits, about the emotional development, and about the control of your different urges, Okay. Which is गर्भ संस्कार. which is गर्भ संस्कार, तो कितना इम्पोर्टेंट होगा। इतना ब्यूटीफुल साइंस। और गर्भोपनिषद में देखो अभी फर्स्ट चैप्टर में क्या बताया, हाउ द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। Right. Okay, so what he says, Pipalad Rishi, it has basically 5 element support. Okay. पृथ्वी, आप, जल, तेज और वायु। Right. तो ये सारा चीज़ जो है वो कैसे है कि जैसे देखो बाहर जो भी है आसमान है, तो अंदर हमारे यहाँ एक वैक्यूम्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ ऐसे कैनाल्स है। जैसे आपको मालूम है कि एलिमेंट्री कैनाल है जहाँ से फूड पाइप और उसमें से सारा चीज़ Right. क्रॉस होता है, तो उसको जो सपोर्ट है वो किस खाने से मिलेगा, Okay. ये एक्सप्लेनेशन है। तो और जो ये हमारे उपनिषद में भी है. हाँ, तो वही तो है। मीन्स उपनिषद डायरेक्ट गर्भ संस्कार ऐसे वर्ड नहीं बोलता, लेकिन Right. उपनिषद ये सारा विजडम दे देता है कि किस तरह से गर्भ का विकास हो रहा है, किस तरह से उन 5 एलिमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए अपने को अलग अलग डाइट या करनी है, या जैसे Exercise. हाँ कई सारे योगिक क्रियाज है जी. वो कैसे करने। तो हमने क्या किया है, ये विजडम को लिया, टेक्नोलॉजी को लिया और इससे कुछ नया क्रिएट किया, जिसके कारण आज के ज़माने में जब हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, जब हम प्रदूषण में रह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तभी भी हमें ये विजडम से हम इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से गर्भोपनिषद में बोली है। अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे फर्स्ट इसमें उन्होंने डेवलपमेंट बताया, फिर 6 सपोर्टिव क्वालिटीज़ बताई। जो सपोर्टिव क्वालिटीज़ क्या थी, डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट थे, तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट के कारण वो डेवलपमेंट होती है। और उसके बाद 4th चैप्टर में उन्होंने इतना अच्छा बताया है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे लगता है यूएसपी होगा अपने गर्भ संस्कार का। Really? उन्होंने ऐसे बोला कि दैट इज अ मोनोलॉग ऑफ फीटस। फीटस सोचता है, गर्भ सोचता है, थिंकिंग करता है, बिकॉज एंशिएंट विजडम सेज कि जो पहले का सारा उन्होंने संस्कार लाया है उसको वो सोच रहा है कि कितने मिजरीज थे, कितने प्रॉब्लम्स थे, और फिर वो विजुलाइज करता है, रिजोल्यूशंस करता है, संकल्प लेता है कि आगे जाकर मैं ये करूँगा। Okay. तो ये मोनोलॉग, So ये जो मोनोलॉग है ये फीटस का है. हाँ, अंदर ही फिटनेस सोचता है। तो अभी एज ए मदर, एज ए फर्स्ट टीचर, शी शुड सपोर्ट द पॉजिटिव अफर्मेशंस। शी शुड गाइड हिम हाउ टू थिंक, हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू वर्क आउट एंड हाउ टू गो फर्दर। बहुत इम्पोर्टेंट है। So that is दैट इज द वैदिक विजडम। हाँ, और फिर हमने क्या कर लिया मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, अच्छा आप बोलते हो कि ऐसा ऐसा सब होता है, तो हमने कलर डॉपलर स्टडी कर ली, तो गर्भ से प्लासेंटा तक आने वाला जो सर्कुलेशन था, फिटोप्लासेंटल सर्कुलेशन, वो बढ़ गया। तो वो बढ़ गया, उसके कारण क्या है, फिटस का हेल्थ फिजिकली
और इमोशनली अच्छा रहने लग गया। तो हमने वो प्रूव कर दिया जो ये बोल रहे, लेकिन हमने कई सारे पेशेंट में ऐसे देखा। ठीक है ना सोनिया जी? तो फिर उसमें ऐसे समझ में आया कि ठीक है, बराबर है कि ये अच्छा काम हो रहा है ना? जो हमारे वेदों में बताया है, ऑफ कोर्स हम कौन उसको ये करने वाले, वो तो वैदिक विजडम है ही है जी। क्योंकि वो उन्होंने सोचा है, विजुअलाइज किया है। लेकिन अभी हमारी समझ के अनुसार हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो फिर प्रेगनेंसी में हमें ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें समझ लेनी है। डिफरेंट मंत्रास है, डिफरेंट उच्चार है, डिफरेंट स्टोरीज है, एकदम प्रैक्टिकली उन्होंने ऐसे बताया ताकि आप उनके इम्प्रिंट को इम्प्रूव करके जी। पॉजिटिव साइड पे ले जा हाँ, सकें, जी, जो जी। उनकी पिछली इम्प्रिंट्स उनके साथ चल जी, रहे हैं, जी, जी, जिसको वो सोच रहे हैं, बराबर बराबर, एब्सोल्युटली ताकि आप उनके अगले जन्म को सुधार सकें। नहीं नहीं, अगले जन्म को नहीं, फीलिंग्स के अगले लाइफ। लाइक एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई मीन। हाँ हाँ, ओके, मीन्स जन्म से होने के बाद बाद के वो जो पुराने इम्प्रिंट्स हैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें। परफेक्ट एब्सोल्युटली। perfect. The Garbha Sanskar is conversion of some positivity in you, additional qualities in you, और delete the negative imprints. ये शब्द बहुत बड़ा है क्योंकि क्रोमोसोम और जो भी ताकत है ये करने की, अगर ये चीज को अप्लाई करें, करेक्ट 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 करेक्ट, दैट इज द साइंस, रियली एनलाइटनिंग। करेक्ट। ऑनेस्टली मैं जो बोल रहे थे खुद भी लाइक जैसे जैसे कि वाकई आज आपने ये जो नया दीप जलाया है नॉलेज का इस दिवाली पे, इट इज अमेजिंग। मीन्स वैदिक साइंस, जबरदस्त है ये, वैदिक right, साइंस हो करते हैं। right। और फिर जैसे आप टेस्टिमोनियल्स की बात करते थे तो 4-5 बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे बच्चे का अपने माता पिता के साथ बॉन्डिंग बढ़ जाता है गर्भ संस्कार के बाद। Yeah। जो लोग ऐसे बोलते हैं कि क्या हुआ, मैं ऐसे हमेशा पूछती हूँ अभी क्या हुआ मैंने मैम, मेरी जो एक प्रेग्नेंट लेडी मेरे पास आई थी तो उसने मुझे पूछा, मुझे पहचाना? मैं बोले ऐसे नहीं पहचान रही हूँ। और कैसे पहचानूंगी, क्योंकि उसके मम्मी को हमने गर्भ संस्कार दिया था। वाओ। जनरेशन थर्ड, नाउ शी इज प्रेग्नेंट। वाओ। तो शी इज और वेदा वेग भी, और उसको भी प्रेगनेंसी आ गई है। हाँ हाँ। तो फिर उसने बोला कि मुझे जो महसूस हुआ एज मैं क्यों करना चाहती हूँ गर्भ संस्कार, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि मैं बाकी के बच्चों से अलग हूँ। मैं अपने माता पिता से ज़्यादा कनेक्ट हो पाती हूँ। मैं ज़्यादा दूसरे चीज़ों का इतने इसमें भाव में नहीं आती। इतने देर तक मीन्स उसके वो संस्कार कंटिन्यू रहे। मैं बहुत अच्छी तरह से सोचती हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ। तो एक केस में मुझे इतने सारे टेस्टिमोनियल्स मिले। हाँ, एक केस में 3 जनरेशन करेक्ट, दैट वाज रियली अमेजिंग थिंग फॉर मी। और बॉन्डिंग ये पॉइंट मेरे लिए बहुत अच्छा था। एब्सोल्युटली। बॉन्डिंग अच्छा है। देखो बुद्धिमान हो जाते हैं, ज़्यादा होशियार हो जाते हैं, ज़्यादा साइकोलॉजिकली ये हो जाते हैं, लेकिन ये कनेक्ट होना जो है ना जी, बहुत डिफिकल्ट है। इमोशनल इमोशनल कनेक्शन विथ योर पेरेंट्स। और आज के टाइम में, आज के दौर में आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो हमारे आसपास हो रहा है, खैर जितना इमोशनल कनेक्शन पेरेंट्स और फैमिली में रहेगा उतना वो बोलते हैं ना भटकना करेक्ट के चांसेस कम हों। करेक्ट करेक्ट क्योंकि आज बाहर की दुनिया के जो टेम्पटेशंस हैं और या बाहर की दुनिया के जो भी इस समय चल रहा है, which is not a very nice situation. There is war all around. There is wrong conditioning of younger generations towards wrong things, like technology को गलत यूज़ किया जा रहा है. So this will keep them grounded, bonded, right? करेक्ट। Absolutely. जैसे एक बहुत अच्छा कहानी मेरे फ्रेंड ने बताया था कि उसकी जो बच्चा था वो रोता बहुत था। Okay. तो मेरे पास लेके आई वो कि पता नहीं गर्भ संस्कार तो कराए थे, रोता है बच्चा ज़्यादा। तो मैंने उसको बोला अच्छा तभी आप गर्भ संस्कार करते वक्त कुछ हम लोग ऐसे म्यूज़िक देते हैं, Okay. ऐसे कुछ लयबद्ध म्यूज़िक। तो बोले वो आपने वापस इसको बोला? तो बोलते नहीं मैंने वो कभी ट्राई नहीं किया। तो मैं बोली ठीक है वही सॉन्ग आप ट्राई करके देखो,
क्योंकि बाकी तो फिजिकली वो फिट था, बच्चे को कुछ तकलीफ नहीं थी। राइट। तो फिर उसने वो ट्राई करना चालू किया और बाद में वो 3-4 दिन के बाद मुझे आई बोलने के लिए कि जब भी वो मैं करती हूँ चालू तो ही स्टार्ट्स, नहीं मुझे अभी रोना नहीं, उसको आदत से पड़ गई थी रोने की। तो तो वो जो गर्भ संस्कार He was की demanding. बात सुन रही थी, हाँ, तो अब जब बच्चा रोता था, जब उस प्ले वापस उस राग को प्ले करती थी, तो Correct. वो चुप हो जाता था। करेक्ट करेक्ट, ही वांटेड इट टू। या तो शायद वही वो डिमांड कर रहा था कि पहले तो मैं सारा सुन रहा था, उससे उसको अभी शांति तो- मिलता हाँ, है। हाँ हाँ। तो दैट वाज द कॉज ऑफ हिज इरिटेबिलिटी। आपके पास बहुत ब्यूटीफुल टेस्टिमोनियल्स हैं। आई थिंक एक बार हमको एक और पॉडकास्ट करना चाहिए जिसमें आप ये सारे टेस्टिमोनियल्स हाँ। खास करके ऑडियंस को बताएं, यस, बिकॉज मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है ये सारी बातें सुन के। और Interesting. मुझे ऐसे बिसाइड इंटरेस्टिंग, देखिए जब आपके पास एक नॉलेज होती है, आप उसको पढ़ते हो, करेक्ट, लेकिन वो कितनी सही है नहीं है, जब ऐसी बातें सुनने को मिलती है जी। तो उसके ऊपर जो विश्वास कॉन्फिडेंस बैठता आता है, है। करेक्ट, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। एंड हमारे सुनिए। एंड दैट इज़ द होल एम्बिशन के गर्भ संस्कार लोग इसलिए अप्लाई करें अपने Yes. ऊपर, इसके रिजल्ट्स इतने ब्यूटीफुल। यस, दैट इज़ द होल एम्बिशन Yes. बिहाइंड कि आप Perfect. हमारी एंशिएंट विजडम को अप्लाई करें और Correct. उसको प्रमोट करें, ताकि आज की नई जनरेशन, जिसको बोलते हैं ना, दिव्य आत्माएं पैदा हो। वी मेक अ ग्रेट बिगिनिंग फॉर Yes. इम्प्रूविंग दिस वर्ल्ड, Yes. making it a better place, because every child deserves to be in the best of places in every department of their life. शब्द बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम उनको वो एनवायरनमेंट दें जो उनके लायक हो। डिवाइन। डिवाइन, एब्सोल्युटली। सो दैट इज ट्रू। फिजिकली तो हम देख सकते हैं कि जी। बच्चे समझो ज़्यादा गोरे होते हैं, स्मार्ट होते हैं, अच्छे होते हैं, सारे लोग कहते हैं। हाँ लेकिन जब ऐसे टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं, जी, जो ज़्यादा ज़रूरी है है ना सर? ऑनेस्टली, तो बिकॉज होना ही है। हाँ, जैसे हमारे वेदास में लिखा है, कोई एक मंत्रा है कुछ, जिसका मतलब ये होता है कि मनुष्य को मनुष्य बनाए पहले। सो आई थिंक दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड, Correct. कि पहले मनुष्य मनुष्य तो बने, Correct. यू नो। मीन्स ये सारा बात ही हम क्यों कर रहे हैं? क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि कृष्ण भगवान ने बोला था ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म नीचे चला जाएगा तब मैं खुद जन्म लूंगा। तो ऐसे कृष्ण हर गर्भ में पैदा पैदा हो होंगे। जाए। That is true. So I think we all should make this effort, we women especially, Yes. क्योंकि हम लोगों को भगवान ने वो एक क्वालिटी दी है, शक्ति दी है, तो हम उस शक्ति को अच्छी डायरेक्शन में चैनलाइज करें Correct. और ऐसी दिव्य आत्माएं पैदा करने की कोशिश करें जो सिर्फ पहले, सबसे पहले आपके घर को रोशन करें, आपकी लाइफ को रोशन करें, हाँ, आपके घर में नए दीप जलें, करेक्ट, और वो फिर रोशनी आपके पूरे ब्रह्मांड में पहुंचे। Correct. And this world becomes a much better place to live in, करेक्ट, because your child deserves the best. Correct. Let's put it like. यस, So thank you so much, Madhura. This was a beautiful, knowledgeable session. Like I said, आज आपने जो दीप जलाया है knowledge का, wisdom का, thank you very much for that. Yes. Like, thank you very much. थैंक यू सोनिया जी। Thank you. And I hope you beautiful ladies, pregnant ladies, you are going to probably, आप इन चीज़ों को प्लीज़ सुनिए, ध्यान से अप्लाई करिए, कोशिश करिए और देखिए तो सही कि इसके रिजल्ट्स कितने ब्यूटीफुल आएंगे। ट्राई, मेक अ ग्रेट बिगिनिंग, एन्जॉय योर जर्नी, एंड प्लीज़, and let me say, okay, we bless you with enlightened souls to enter your house. Let your angels make this world a better place to live in. Thank you very much. Thank Take care. God bless. Yes. And we see you soon again. Thank you. Thank you.